ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಧಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದ 2ನೇ ದಿವಸದಂದು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ 32 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೆ ಮಹಾವೀರ ಧಮ್ಮ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಬೇಕು. ಧಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಧಮ್ಮ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಧಮ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ, ಧಮ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಧಮ್ಮದ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಧಮ್ಮ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಧಮ್ಮದ ಲಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಧಮ್ಮದ ಸಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದುಃಖವಿದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮನಗಂಡ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ದುಃಖವಿಲ್ಲದ ಬದುಕಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿದ್ರು. ದುಃಖವನ್ನ ಹೇಗೆ ದೂರವಿಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮೋಹ, ಆಸೆ, ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ಸುಖ ಸಿಗಬಹುದು, ಸಂತೋಷ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಾನವ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದ್ರೆ, ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದ್ರೆ, ಇದ್ದದನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾನವ ದುಃಖಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಆಸೆ, ಆಮಿಷ, ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ದುಃಖ ವಿಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಸಂಸಾರ ಇದು ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷದ, ದುಃಖದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅವನತಿಯೇ ಅದರ ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಮನಗಂಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಡೀ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ದುಃಖ ವಿಮುಕ್ತಿಯ ಸಾರವನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ 32 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೆ ಮಹಾವೀರ ಧಮ್ಮ ಪ್ರಬೋಧನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈಶಾಲಿ ನಗರ ಅಣದೂರಿನ ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಅವರು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದರು. ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೆ ವರಜ್ಯೋತಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗುನ್ನಳ್ಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಚಲವಾ, ಮಹಾಸಭಾದ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬೆಲ್ದಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಂಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಪ್ಪ ಮೇಟಿ, ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸದಾಫುಲೆ, ಮಂಜುಳಾ ಭಾವಿದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಡಗೇರ್, ಧನರಾಜ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಗೋವಿಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು. आयोजित ये धम्म प्रवचन के जो श्रृंखला है, आज उसका दूसरा दिवस। इस अवसर पर धम्म ये सुनने का समय है। धम्म सवन कालो अयं भदंता। धम्म कालेन धम्म सवणं एतं मंगलमुत्तमं। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं। भगवान ने कहा कि बार बार धम्म प्रवचन सुनना चाहिए, बार बार धम्म चर्चा करनी चाहिए। और बिदर वाले लोगों का बहुत सहृदय से मैं उनको मैत्री देता हूँ कि हर साल आप रखते हो, भले शाम के लिए 2 घंटे के लिए रखते हो, लेकिन बहुत अच्छी बात है। जैसे कल ही अपन कंटिन्यू प्रवचन को कर रहे थे, कल शील का विषय था, लेकिन वो विषय अधूरा हुआ था कल। उसका पूर्व पीठिका में जाने से पहले भगवान बुद्ध ने एक बार कहा कि धम्म भविष्य में कभी नष्ट होगा। भविष्य में भगवान कहते हैं जब कभी समय आता है और समय के अनुसार जब कभी धम्म नष्ट हो जाएगा, तो उसी के लिए भगवान बुद्ध ने 3 कारण बताए। उसमें पहला कारण है धम्म का सही अभिप्राय। अभी अभिप्राय इस शब्द को आपकी भाषा में क्या कहते हैं अभी ये मुझको इतना पता नहीं, और हिंदी में भी क्या कहते हैं इसका भी मुझे पता नहीं, लेकिन धम्म का योग्य अभिप्राय, सही अभिप्राय, यदि उस धम्म के अनुयायी भूल जाते हैं तब इस संसार से, इस विश्व से धम्म नष्ट हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, यदि धम्म का सही अभिप्राय भूल जाने के बाद क्रमशः उस धम्म का कोई आचरण नहीं कर सकता।
धम्म का अभिप्राय भूल गए तो धम्म आचरण कैसा होगा? तो धम्म का आचरण नहीं होने से, धम्म का अनुसरण नहीं होने से क्रमशः धम्म नष्ट हो जाता है। और तीसरा भगवान ने कहा कि जो धम्म के जो लक्षण है उस लक्षणों पे ज्यादा चिंतन करना है, मनन करना है, उसको जीवित रखना है। लक्षणों में जैसे त्रिपिटक के लक्षण होंगे, जैसे बुद्ध धम्म का जो सार है, 4 आर्य सत्य, ये सधम्म का सार है। उसमें अर्यो अठंगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये सार है। 37 बोधि पक्षीय धम्म, ये धम्म का सार है। और बाह्य लक्षण जो है, चैत्य, स्तूप, विहार, इन्हीं को जीवित रखना पड़ेगा। अंतर्गत जो लक्षण है और जो बाह्य लक्षण है, तब नहीं रखेंगे, तब धम्म क्रमशः कालबाह्य हो जाएगा, संसार से नष्ट हो जाएगा। ये 3 चीजें भगवान बुद्ध ने भविष्य को देखते हुए हमें बताई है। तो सही अभिप्राय, हमें उस पर चिंतन ज्यादा करना है कि भगवान क्या चाहते हैं हम लोगों से। जैसे उन्हें बुद्धत्व का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने अपना धम्म संसार के दुखी लोगों को सिखाया, तो उस धम्म का उद्देश्य क्या है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये दुख, भगवान के जो 4 आर्य सत्य है, उसमें मूलतः ये दुख है। भगवान का पहला आर्य सत्य भगवान ने बोले, ये संसार में दुख है, ये आर्य सत्य है। आर्य यानी नोबल ट्रूथ कहा उसे, जो यथार्थ है, इस संसार का कोई आदमी उसको ठुकरा नहीं सकता। जो वाणी सम्यक संबुद्ध बोलते हैं, ये संसार दुखों से पड़ा है। ये पहला कारण उनको संबोधि ज्ञान में समझ में आया। कुछ लोग भगवान बुद्ध पे आरोप लगाते हैं कि भगवान बुद्ध ने भगवान बुद्ध दुखवादी थे। यदि संसार में दुख 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 है तो जीने का क्या मतलब है, कहीं तो सुख होगा। ऐसे बाकी के लोग भगवान बुद्ध के तत्कालीन विरोधक और आज के भी कुछ विरोधक भगवान बुद्ध की निंदा करते हैं कि भगवान बुद्ध दुखवादी थे। अभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास क्यों जाता है आदमी? कोई शारीरिक दुर्बलता, ये कुछ रोग हो गया तो जाते डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमें पूरा चेकअप करता है और ब्लड टेस्ट करने के बाद, कुछ रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर आपको बोलता है, बाबू तुझको ये रोग हुआ है। अभी डॉक्टर ने जो बोला, क्या डॉक्टर दुखवादी है क्या? रोगवादी है डॉक्टर। डॉक्टर ने तो सही निदान उसका ढूंढ निकाला कि तुझको ये तू रोगी है, इस रोग का ये कारण है, और यदि ये दवाई लेगा तो उस रोग से तू मुक्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने केवल दुख है इतना बताते बुद्ध, तो सचमुच बुद्ध दुखवादी थे ना। लेकिन बुद्ध ने ये दुख है ये कहा, लेकिन दुख दूर किया जा सकता है। ये 2 चीजें संसार को बताई भगवान ने। ये दुख क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। मैं कल भी आपको बताया, राजा शुद्धोधन उनके पिताजी थे, सिद्धार्थ गौतम जो राजकुमार है, उनके पिताजी शुद्धोधन है। बचपन यानी बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम महामाया के गर्भ में आते हैं, तो आषाढ़ पूर्णिमा को आते हैं। और आषाढ़ पूर्णिमा को जब उनके गर्भ में आते हैं तो उनको जो सपना आता है, ख्वाब में वो देखती है, एक सफेद हाथी सफेद कमल का फूल लेके उसकी प्रदक्षिणा करता है 3 बार, और उसके राइट साइड से अंदर जाता है। ऐसा सपने में आया उसके।
तो सुबह सुबह वो अपने पति को बोलती है राजा शुद्धोधन को कि ऐसा ऐसा मेरे को सपना आया। तो उसने तज्ञ लोगों को बुलाया शुद्धोधन राजा ने, और मेरे पत्नी को ऐसे ऐसे सपने में ऐसा आया, तो इसका अर्थ क्या होता है। तो जितने भी तत्कालीन जो ग्रंथों का अभ्यास करने वाले लोग थे उन्होंने बताए कि तुम्हारे गर्भ में एक दिव्य बालक आपके पेट में आया है। यदि वो संसार में रहेगा तो पूरे संसार का एक क्षत्रिय सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा। चक्रवर्ती, ये चक्रवर्ती राजा क्या होता है, पूरे संसार में दंड विरहित, शस्त्र विरहित, शिवाय शस्त्रों के सारे विश्व को जीत लेता है। इसी को चक्रवर्ती राजा कहा है। या तो तेरा पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा, नहीं तो संसार के लोगों को दुख के दूर जाने का, दुख विमुक्ति का मार्ग सिखाएगा। ये दोनों में से एक बात है। राजा शुद्धोधन ने सब कुछ ऐसी व्यवस्था की कि जब बच्चा पैदा हुआ तब उसके पहले 3 महल बनाए, और जो पैदा हो गए उनके गोत्र का नाम गौतम था, उनके कुल का नाम। और उनको बहुत दिनों से बच्चा नहीं हुआ, बहुत सालों के बाद बच्चा हुआ राजा शुद्धोधन को, तो उनका अर्थ सिद्ध हो गया, इसलिए उसका नाम सिद्धार्थ रखा। हमारी मनोकामना ये पूर्ण हो गई, हमारा अर्थ सिद्ध हो गया। सिद्धार्थ गौतम जन्म लिए तो बचपन से सारी सुख सुविधा गौतम के लिए रखी थी। कितनी 3 मंजिल, एक 9 मंजिला इमारत है, एक 7 मंजिला है और एक 5 मंजिल इमारत है। एक धूप काल के लिए, ठंडी के लिए, बारिश के लिए। सिद्धार्थ गौतम को दुख क्या है ये कान से कभी सुना नहीं। सिद्धार्थ गौतम, बाप को पता था ना, थोड़ा भी दुख आएगा तो संसार से बाहर चला जाएगा। ये सब कुछ होते हुए महापुरुष एक अपना अलग चिंतन करते हैं, प्रज्ञा जगा के खुद का चिंतन करते 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 आखिर ये संसार है क्या, आखिर इतने सुख मुझको मेरे बाप ने दिए, लेकिन ये सुखों से परे कुछ अमृत है क्या। जाति, जरा, व्याधि और मरण, इस संसार से परे कुछ है क्या, वो चिंतन करते हैं और सम्यक संबुद्धि प्राप्त करते हैं। और यही बताया लोगों को कि संसार क्रमशः मृत्यु की तरफ जा रहा है। संसार के सभी प्राणी मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। एक दिन सभी नष्ट होने वाला है। अनिच्छा वत संखारा, ये सारे भी जितने भी वस्तुएं, स्थिति, घटना, व्यक्ति, सभी काल का घास बनेंगे। बुद्ध तो प्राप्त किया उन्होंने, और ये धम्म का ज्ञान दिया कि संसार में दुख है, वो दुखों को नष्ट किया जा सकता है। पहला ये तो मानो कि दुख है। तुम बोलेंगे बंते जी 1 लाख पगार है, 2 लाख पगार है, 5 लाख पगार है, बंगला है, कार है, गाड़ी है, सुंदर पति है, सुंदर पत्नी है, 2-3 बच्चे हैं, कहाँ दुख है हमें। सिद्धार्थ गौतम को क्या कमी थी। जो वो छोटा सा बालक पैदा हो गया राहुल, तो उधर मैसेज गया कि आपको छोटा सा बच्चा हो गया। बोले अरे अभी राहुल जातो ति बंधन जातो, पाली में कहा अरे राहु यानी विघ्न, संकट है मेरे ऊपर, वो पैदा हुआ तो संकट पैदा हो गया। लेकिन सुनने वाला कच्चे कान का था। अरे हमारे राजकुमार ने राहुल 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 राहु बोला तो उसने राहुल नाम रखा उधर जाके, और सब कुछ न्यौछावर करके, त्याग के, छोड़ के, हाथ में मिट्टी का पात्र लेके सम्यक संबुद्धि प्राप्त की। खैर उसी पे अपन आगे चलेंगे। ಉಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋಣ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ
ವಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಕುಟುಂಬ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನ ತಾವು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇವು ಕೊನೆಗಾಗಿ ಸರಳತೆಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನತ್ತಿಮೇ ಶರಣಂಗಯ್ಯ ಬುದ್ಧಮೇ ಶರಣಂ ವರಂ ಯೇದೇನ ಸಚ್ಛವಜೇನ हो तुम्ही जय मंगल हो तुम्ही जय मंगल नत्ती हो तुम्ही जय मंगल साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಾಯ